Hello guys, welcome to our today's lecture. It's of topic about oral pathology, developmental disturbances. We have finished many lectures regarding oral pathologies, developmental disturbances because few questions are asked which are very important. As I have mentioned that previously we have finished gemination, fusion, all these disorders. So what these people do, they will ask you short note on gemination, or they will ask you to differentiate between gemination and fusion. At this point, you must be able to clarify what to write, what not to write. So while you are preparing your notes, always have a habit of differentiation, gemination and fusion. Okay, you can write differences. Always prepare notes in this manner. Okay. Apart from that, we have studied that tail and cusp will be there, which will be in Rubinstein Diaby syndrome. So such one-liner can help you. Okay. Here we will have n minus 1. Here you will have n plus 1. Okay, because two teeth are forming, two tooth buds are joined, and the number of teeth will be less. So this way you have to recall, or you have to prepare notes. In today's topic, we'll be discussing hypodontia. Okay, teeth number is less. Definition. First point is less number of teeth. This is definition. Okay. Second thing is the same thing. It might be lack of development of one or more teeth. Okay. Now oligodontia. What is oligodontia? If lack of development of six or more teeth, more than six or equal to six teeth, then the term is called oligodontia. Now etiology. As I mentioned that you need not mug up the etiology. First of all, it might be idiopathic, genetic, traumatic, trauma during development of the birth of baby, or trauma during the development of teeth, X-ray radiation. Remember this, X-ray has impact on tooth development. Then also you can write like mineral consumption during teeth development, mineral intake. Which mineral? Fluoride. As you can see that you can correlate many things. You do not mug up. Okay. Clinical features. Hypodontia is very uncommon in deciduous teeth. Only it is found in permanent. When it is involved, it will be found mostly in the lateral incisors. I am suffering from hypodontia of lateral incisors. My lateral incisors are small. In permanent dentition, it will be third molars are affected. When you see that in many cases upper teeth will be small only. Okay, and upper seven will be this much big. When you go for extraction, this is very easy to remove. Okay, this is 8 and this is 7. What is its associated? It is associated with microdontia treatment. You have to go for cosmetic or prosthesis replacement treatment. So in the previous lecture also, I have mentioned you need not muck up all these things. For example, hypodontia, then microdontia, then macrodontia, okay, oligodontia. You have to differentiate here in this way. Definition, then etiology, then clinical features, then its investigation, how you know that this is the problem, then its RX, that is treatment plan. So as you are seeing on the screen,
always have a habit of differentiating this. And for example, if you forget anything for hypodontia, so I have mentioned you that you can go with the same thing, etiology. All will have the same thing: idiopathy, genetic factors, trauma during development of teeth, some developmental disorder, some immunological disorders, syndromes associated. So all these words you need not mug up. You can write in here also, here also. क्लिनिकल फीचर्स, यहाँ दांत छोटा हो जाता है, दांत छोटा होगा तो क्या होगा? खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, स्पीच में दिक्कत, देखने में दिक्कत. तो यू हैव टू राइट ऑल दिस कंप्लेंट्स. ओके. एंड इन्वेस्टिगेशन, so go with proper OPG, go with proper timing of the teeth of schedule. Many patients come to us and tell that my son or girl is daughter is 7 year old and there are no one. So they will erupt by age of 8:30, 8.5 years. Okay. So what does it mean? By 8.5 years they should wait. So there will be no treatment. In this case, we will be giving wait and watch. Okay. Now next question, cleft lip and palate. We already discussed cleft lip and palate. So I will once again revise this. So first of all, definition. Here they are not given, but definition. It is a defect in lip or palate due to non-fusion of developmental process या mandibular process. ठीक है. और etiology तो क्या आएगी? तो नॉन फ्यूजन, यहाँ पे नहीं दिया है, मैं फिर बता रहा हूँ. नॉन फ्यूजन ऑफ मैंडिबुलर प्रोसेस, लेफ्ट और राइट का जो प्रोसेस होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और फिर कंप्लीट लिप बनाएंगे, कंप्लीट पैलेट बनाएंगे. लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत होती है, लेफ्ट लिप में मैंडिबुलर प्रोसेस आएगा, पैलेट में पैलेटाइन प्रोसेस आएगा. ठीक है. तो वो दोनों प्रोसेस एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, नॉन फ्यूजन हो जाएगा, तब क्लेफ्ट लिप और पैलेट हो जाएगा. ठीक है. अब उसका सीधा इटियोलॉजी उसके बाद यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन इटियोलॉजी आपको पता है क्या होगा. एम्ब्रोलॉजिकल डिफेक्ट, जेनेटिक प्रॉब्लम, इडियोपैथिक, ट्रॉमेटिक, ऐसा. तो ऐसे आपको 4 या 5 चीजें जो है ना वो आपको कॉमन बना देनी है जहाँ पे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर आता है ना तब. ठीक है. आप ऐसा भी बता सकते हो कि लो बर्थ वेट, लो वेट था बर्थ के टाइम. ठीक है. फिर माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो जो कॉमन है. ठीक है. अब क्लिनिकल फीचर्स, तो ऐसा सोचो कि टंग या लिप और पैलेट डिफेक्टिव है तो क्या क्या होगा. तो आपको पता ही है क्या क्या होगा. पेशेंट को ठीक से खा नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, ड्रिंकिंग, लिक्विड में दिक्कत, बाहर निकल जाएगा नोज से पानी, जैसे हम ओरोएंट्रल फिस्टुला में करते हैं ना. ओरोएंट्रल फिस्टुला क्या है? वो एक ऐसी चीज है जो हम ऊपर का सिक्स निकालते हैं ना, तो जो पैलेटाइन रूट होता है, पैलेटल रूट, वो कभी कभार ऊपर के साइनस के साथ कनेक्ट होता है कभी कभार. ऐसे केस में दांत निकालने के बाद ऊपर का साइनस और हमारी ओरल कैविटी, वो कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा. उसको बोलते हैं ओरोएंट्रल फिस्टुला. ठीक है. तो यहाँ पे तो पैलेट ही डिफेक्टिव है, तो ऊपर का साइनस और नीचे का पैलेट ओपन हो जाएगा, तो ओरल कैविटी और नोज के बीच में कम्युनिकेशन ऑन रहेगा. पानी जो पियोगे आप वो नोज से भी बाहर आएगा, नोज का फ्लूइड मुंह से भी बाहर आएगा. बोलने में दिक्कत है. फिर कभी कभार जो लिटिल इंसाइजर्स है वो शॉर्ट भी हो सकते हैं और कभी कभार एब्सेंट हो सकता है. क्रॉस बाइट होगी. तो क्रॉस बाइट आपको पता ही है क्या है.
क्रॉस बाइट में क्या होता है, नीचे के दांत है ना, वो ऊपर के दांत से बाहर रहेंगे। हमारा जो डेंटिशन होता है अभी, जैसे आप मुंह बंद करते हो तो क्या होगा, ऊपर के दांत थोड़े बाहर रहेंगे, नीचे के दांत थोड़े अंदर चले जाएंगे, तो वो क्लास 1 बोलेंगे और नॉर्मल ऑक्लूजन बोलेंगे। क्रॉस बाइट में उल्टा होगा, नीचे के दांत बाहर होंगे यानी कि मैंडिबल थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, मैक्सिला छोटा होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट तो क्या आएगी, ठीक है, तो 12 या 18 मंथ्स में उसको रिपेयर करना है, ठीक है। ऐसा भी रूल है, मैं अगर भूला नहीं हूं तो मिलार्ड्स रूल है, ठीक है। उसके लिए 10 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 10 मंथ्स का टाइम होना चाहिए और 10 एलबीस वेट होना चाहिए, ठीक। ये यूनिट थोड़ा यूके में है, हमारा 5 या 6 केजी जैसा होगा, ठीक है। तो ऐसा एक रूल है, मिलर्स रूल, क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरी से पहले ये रूल को फॉलो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता है, अभी अभी आपको ये अगर 5 मार्क्स में आ गया तो आप क्या कर सकते हो, डायग्राम भी इसका ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या करना है, ऐसा लिप ड्रॉ करना है, फिर बोलना है कि यहाँ पे डिफेक्ट है लिप में, ये क्लेफ्ट लिप है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मेहंदी पैलेट को आप ड्रॉ करना है तो आप ऐसा भी पैलेट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये आपने पैलेट ड्रॉ किया, फिर आपको यहाँ डिफेक्ट बता देना है, ठीक है। बोलना है कि क्लेफ्ट पैलेट, तो आपका सप्लीमेंट्री जो होगा आप वो भी फिल होगा, और ऐसे डायग्राम भी आपको अच्छे मार्क्स खींचेंगे। अब क्लेफ्ट पैलेट का क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन वो अभी नहीं करना है, उसका क्लासिफिकेशन अभी नहीं पूछा जाएगा, फाइनल ईयर में आ सकता है, ठीक है। और ओरल सर्जरी में भी आ सकता है, डिफेक्ट कैसे कैसे होते हैं पैलेट के, ठीक है। अब सिंड्रोम्स कौन कौन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये पियर रॉबिन सिंड्रोम है, उसमें क्या क्या आएगा, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोग्नेथिया और ग्लोसोप्टोसिस, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट होता है जो छोटा होता है और टंग का इन्फ्लेमेशन जैसा हो जाता है, तो ये पियर रॉबिन सिंड्रोम। तो वन लाइनर ऐसा आ सकता है, विच सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ क्लेफ्ट पैलेट, तो पियर रॉबिन सिंड्रोम, ठीक है। अब दूसरे सिंड्रोम जो है वो भी क्या क्या है, देखिए वो सारे सिंड्रोम यहाँ बता दिए हैं। तो ये सिंड्रोम आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे क्या क्या आता है, क्योंकि वन लाइनर में आता है। मैं आपको अभी से क्वेश्चन बता देता हूँ, डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ सिंड्रोम ऐसे है जो हमारे एमसीक्यू जो होती है डेंटल जीपीएससी की एग्जाम में, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है। तो आपको अभी से ही वो आदत डालनी होगी कि सिंड्रोम आपको ठीक से करने हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसको उसका ट्रीटमेंट तो पता चल गया ना, क्लेफ्ट लिप और पैलेट का, सर्जरी कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। उसका 10 का रूल फॉलो करना है, रूल ऑफ 10 मिलार्ड का। फिर कोई पेशेंट होगा जिसमें आपको डिफेक्ट सोल्व करने के लिए ग्राफ्ट भी लेना पड़ेगा पैलेट में से, ठीक है। तो आपको बोलना है कि हम सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं और ये मिलार्ड्स रूल लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टूथ के नंबर का डिस्टर्बेंस, ठीक है। अभी तक साइज का चल रहा था, फिर हमने स्ट्रक्चर का किया, अभी नंबर, नंबर ज्यादा भी होंगे और कम भी होंगे, ठीक है। ज्यादा होगा तो सुपर न्यूमेररी या एक्स्ट्रा टीथ, कम होंगे तो क्या होगा, ओलिगोडोंशिया, ऐसा भी बोल सकते हैं, और एनोडोंशिया भी बोल सकते हैं। तीन आता है, एनोडोंशिया, हाइपोडोंशिया, हाइपरडोंशिया।
अब हाइपरटोन्सिया यहाँ पे समझाया है, दांत के नंबर ज्यादा बढ़ जाना। अभी हमने आपको ब्लैंक पेज पर बताया, आपको ऐसे क्या करना है, ऐसे तीन डिवाइड कर देना है तीनों को। ये तो देर लग रही है, चलो। एनोडोन्शिया, फिर हाइपो और हाइपर। अभी हमने समझाया था ना आपको, या डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, या कुछ आपको सिंड्रोम एसोसिएटेड वो लिखना है, वो सब आपको ऐसे बना देना है। अब सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले में आएगा इंक्रीज्ड नंबर ऑफ टीथ। तो देखिए, जब भी आपके एग्जाम में आता है ना, तो आपको वर्ड्स बचाने हैं, याद रखिए। मैं अभी खाली हाइपोडोन्सिया की डेफिनेशन लिखता हूँ। इंक्रीज्ड, बस ये उसकी डेफिनेशन, ये एब्सेंस ऑफ टीथ। ठीक है, गलत गलत हो गया, यहाँ हाइपर आएगा और यहाँ पे हाइपो। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज्ड नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो ऐसे करके आपको वर्ड्स बचाने हैं। अब इसकी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में आपको तो पता ही है क्या क्या होगा। डेवलपमेंटल आता है तो कंजेनाइटल, ट्रॉमेटिक डिस्टरबेंस, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम दिक्कत, टूथ डेवलपमेंट के टाइम कोई ट्रॉमा हो जाता है, ऐसे सब आपको लिख लेना है। ठीक है, तो आगे तो हमने एनोडोन्सिया और हाइपोडोन्सिया का तो पढ़ा दिया है, यहाँ पे खाली हाइपोडोन्सिया बाकी था। ठीक है, कभी कभार कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो बर्थ के टाइम आते हैं, वो कुछ काम के होते नहीं, वो खाली फीडिंग में परेशान करते हैं। जो बर्थ के टाइम आते हैं उसको बोलते हैं नटाल टीथ। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड था गुजराती मीडियम का, वो ऐसे बोल रहा था कि ये नाताल માં જે દાંત આવે એને નાતાલ દાંત કહેવાય. Okay, so it is natal teeth. In English, we have some different pronunciation. Okay, so it is within the first 30 days, the teeth which are present are called neonatal teeth. Okay, during birth, natal. After birth to 30 days, it is called neonatal. Okay, now developmental disturbance of teeth basis on size, नंबर एंड शेप, ये खाली आपको इन्यूमरेट करना है। ठीक है, ये लिस्ट बना देना है। साइज के हिसाब से क्या क्या आएगा, एरोडोन्शिया, ये माइक्रोडोन्शिया, मैक्रोडोन्शिया। फिर नंबर के हिसाब से क्या आएगा, तो आपको लिखना है। ठीक है, अभी साइज के हिसाब से क्या क्या आएगा वो हमको लिखना है, फिर नंबर के हिसाब से और शेप के हिसाब से। लेकिन कभी कभार लोग क्या करते हैं, कोई अलग से पूछ रहे थे स्ट्रक्चर वाला हमको बताइए। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया है आगे के टॉपिक में। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या होगा, तो एमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, एनवायरमेंटल इनेबल हाइपोप्लेसिया। फिर आता है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटल डिस्प्लेसिया, रीजनल ऑर्डर डिस्प्लेसिया और डेंटिन हाइपोक्लासिफिकेशन। ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझा दिया है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों में डिफरेंस आता है। ठीक है, अब
ये क्वेश्चन भी आ सकता है घोस्ट टीथ 5 मार्क्स में या वन लाइनर में। क्या है? तो वो ओडोंटोडिस्प्लेसिया है। ठीक है, वो क्या है? ओडोंटोडिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ, सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में आपने किया होगा। जो सेल्स होते हैं ना, वो नॉर्मल होता है तो ग्रोथ होता है, और जब डिस्प्लेसिया हो जाती है ना तो सेल्स थोड़े अलग टाइप के हो जाते हैं, सेल्स चेंज हो जाते हैं, और वो कुछ ग्रोथ ऐसी होती है कि वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो दांत के अंदर अगर सेल्स होंगे डेंटिन और इनेमल के, वो खराब तरीके से बिहेव करेंगे, तो दांत बनेगा लेकिन ठीक से दांत जैसा शेप नहीं होगा। जो उसकी एनाटॉमी होती है ना, ऐसा कुछ अलग बन जाएगा, आपको लगेगा क्या है क्या अंदर। ठीक है, तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि दांत के डेवलपमेंट के टाइम सेल्स थोड़े डिस्प्लास्टिक हो जाएंगे। डिस्प्लेसिया होगा ना, वो हमने आपको शायद लेक्चर में समझाया होगा। डिस्प्लेसिया का एक सब जगह वो आएगा, डिस्प्लेसिया वर्ड। उसमें क्या क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे चेंज होते हैं। एक होता है इंक्रीज्ड न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। फिर क्या होता है? लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी। सेल का जो कंटेंट है ना, वो एक जगह ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा। ठीक है, फिर न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। ये इतना याद होना चाहिए, ये तो हमको क्या है थर्ड ईयर से हमने याद रखा था। तो डिस्प्लेसिया में न्यूक्लियर प्लियोफॉर्मेशन, न्यूक्लियर अभी ऐसा है, कल ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो डिस्प्लेसिया में जो चेंजेस है, वो सब चेंजेस ऐसे हैं कि वो सेल्स ग्रोथ एबनॉर्मली करेंगे। तो यहाँ पे ऑडोटो डिस्प्लेसिया मतलब दांत के अंदर डिस्प्लेसिया हुआ है तो दांत ठीक से ग्रो नहीं होगा, दांत कुछ अलग जैसा बनेगा, और वो जो दांत बनेगा उसको बोलेंगे घोस्ट टीथ। उसमें एक्टोडर्म भी इन्वॉल्व है, मेसोडर्म भी इन्वॉल्व है। कभी कभार टूथ में कैल्शियम कम होगा और हाइपोप्लास्टिक भी होगा। तो आपको ये भी मैंने बता दिया था, हाइपोप्लास्टिक मतलब नंबर कम होना सेल्स का। फिर हाइपोकैल्सिफाइड मतलब उसका कैल्सिफिकेशन कम होना, और हाइपो मैचुरेशन मतलब जो मैट्रिक्स है ना, वो डिफेक्टिव होना। तो ऐसे आपको हर बार याद होना चाहिए। ठीक है, अब इटियोलॉजी। तो इटियोलॉजी में आपको तो पता ही है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या है, माइग्रेशन गलत होगा न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का। अब देखो मैंने जो बोल रहा था ना, प्रेगनेंसी के टाइम मेडिकेशन ले रहा है कुछ पेशेंट, ट्रॉमा है, रेडिएशन है, सोमेटिक है, सर्कुलेटरी है, इडियोपैथिक भी बोल सकते हो। तो ये ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ मैं भी ऐसे लिखने की, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में जाते हो तो आप भूल जाते हो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो ऐसे आपकी पेन अटकनी नहीं चाहिए, आपको लिखना कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स। तो क्या होगा क्लिनिकल फीचर में? तो दोनों डेंटिशन डेसिडियस और परमानेंट दोनों अफेक्टेड है। फीमेल्स में ज्यादा है, एफ ग्रेटर देन मेल। ठीक है, मैक्सिलरी में ज्यादा है तो यहाँ पे लिखो मैक्सिलरी ग्रेटर देन मैंडिबुलर। कभी कभार दांत ऐसे है कि वो इरप्ट ही नहीं हो पाते, वो गम्स में चले जाते हैं, क्योंकि उसकी साइज इतनी छोटी होगी ना, वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। एक्सरे में देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये तो गम्स के नीचे दांत चिपकर बैठा है और लगेगा कि कोई घोस्ट बैठा है, इसलिए इसको घोस्ट टीथ बोलते हैं। कभी कभार कैरिस भी होगी, जो दांत बाहर आएंगे ना उसमें, और झिंझाएवात जो होगा जिसके नीचे होगा, कभी कभार वहां पे स्वेलिंग भी होगा। तो ये सब चीजें ऐसी है कि आपको भी ऐसे लिखना आ जाना चाहिए। अब हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? ठीक है, तो आप डायग्राम ड्रॉ करके उसका हिस्टोपैथ लिख सकते हो आपकी जर्नल में से। आपको बोलना है कि इम्प्रॉपर एपिथेलियम है, इनकम्प्लीट कनेक्टिव टिश्यू है, ऐसे भी आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पे अगर हिस्टोपैथोलॉजी नहीं दिया है तो आपको डायग्राम कुछ भी बनाना आना चाहिए। फिर ट्रीटमेंट।
तो आपको दांत वो निकाल सकते हो और वहां पे फिक्स्ड दांत दे सकते हो। और कभी कभार जो दांत थोड़ी साइज में कम है उस पर आप रूट कैनाल करके नए दांत भी लगा सकते हो। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर्स टूथ। ठीक है, वन लाइनर में भी आ सकता है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। टर्नर्स टूथ को आप कैसे याद रखना है, हमेशा ये रखिए, हमने कैसे याद रखा था, यहाँ पे टी है टर्नर में, यहाँ पे टूथ है, तो हमने ऐसे याद रखा था कि ट्रॉमा, तीसरा टी आ गया, ट्रॉमा के कारण टर्नर टूथ होगा। दूसरा नाम है टर्नर्स हाइपोप्लेसिया। ठीक है। अब उसकी ये डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन? लोकलाइज्ड इनेमल हाइपोप्लेसिया ड्यू टू ट्रॉमा और इन्फेक्शन, और दांत को टर्नर्स टूथ बोलते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस, फॉर एग्जाम्पल, जो दांत है डेसिडियस, ठीक है, बच्चों के दांत होते हैं डेसिडियस, उसमें कैरीज है, उसके इन्फेक्शन से नीचे के दांत को इन्फेक्शन या थोड़ा दिक्कत होगा, और जो ऊपर का एमिलोब्लास्टिक लेयर होगा नीचे के दांत का, वो इंटरफियर होगा, डिस्टर्ब होगा, और इसके कारण हाइपोप्लास्टिक क्राउन बनेगा। हाइपोप्लास्टिक मतलब डिक्रीज्ड इन एमिलोब्लास्ट। ठीक है। तो आपको देखो एग्जाम में कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। टर्नर्स टूथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट आएगा डेफिनेशन। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ट्रॉमा टू डेवलपिंग टूथ, फिर हाइपोप्लास्टिक क्राउन, और टर्नर टूथ बन गया। अब आता है इटियोलॉजी, वो तो मैंने आपको समझा दिया है क्या क्या लिखना है। ट्रॉमा, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी के टाइम माल न्यूट्रिशन है, पेशेंट को दिक्कत है कंजेनेटली, इम्यूनोलॉजिकली डिफरेंट डिसीज है, वो सब आप लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है इटियोलॉजी के बाद, क्या आएगा उसकी पैथोजेनेसिस। तो जब भी ऐसे पैराग्राफ है ना उसको आपको ऐसे लिखना है। पैथोजेनेसिस क्या आएगा, देखिए यहाँ पढ़ लीजिए पहले। डेसिडियस ट्रूथ होगा, उसमें कैरीज होगा, नीचे के क्राउन को अफेक्ट करेगा और फिर एमिलोप्लास्टिक लेयर को अफेक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे कैरीज और इन्फेक्शन इन डेसिडियस टूथ। ठीक है, वो क्या करेगा, डिस्टर्ब एमिलोप्लास्टिक लेयर ऑफ परमानेंट टूथ। ठीक है, तब जाके हाइपोप्लास्टिक क्राउन बनेगा। ये उसकी पैथोजेनेसिस। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, अभी जैसे मैंने बताया ना। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, तो ये से क्या होगा, वर्ड्स भी कम होंगे और आपके कंटेंट को एग्जामिनर अच्छा लगेगा। कभी कभार आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा डेसिडियस टूथ है, यहाँ कैरीज बता दीजिए, यहाँ पे इन्फेक्शन बता दीजिए, और हमारा ये परमानेंट टूथ डेवलप हो रहा है। ई के नीचे कौन सा दांत आएगा, फाइव आएगा। ठीक है, तो आप बता देख सकते हो कि डिस्टर्बेंसेस। तो ये ऊपर का जो है वो ऐसे आप डायग्राम ड्रॉ करके भी बता सकते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इस बार आप ऐसे पेपर लिखोगे तो आपको 100% अबाउ 60% मार्क्स आएंगे। ठीक है, अभी आगे का। ठीक है, जो ट्रॉमा के टाइम जो होता है ना डिस्टर्बेंस, ठीक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस
आते हैं। एक तो हाइपोप्लास्टिक क्राउन बन जाता है, फिर कलर में दिक्कत, कंसिस्टेंसी में दिक्कत, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जब भी इनेमल की बात हो रही है तो कलर, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ, सरफेस, ऐसे आपको अलग अलग पॉइंट करके आगे आगे लिखते जाना है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट उसका क्लिनिकल फीचर्स। तो आपको पता ही है, इनेमल में दिक्कत होगा तो कलर, कंसिस्टेंसी, खाने में पीने में ये सेंसिटिविटी का दिक्कत होगा, वो सब रहेगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बताया है कि मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिग्रेसिव ऑल्टरेशंस ऑफ टीथ। ठीक है, टाइम के साथ या डेवलपमेंट के टाइम टूथ थोड़ा अलग बन जाता है। तो कौन कौन से? तो इनेमल पर्ल है, मलबेरी मोलर है, ग्लोबोडोंशिया है, हचिसंस इंसाइजर, ये वाला सिफिलिस के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं क्या क्या है। रिग्रेसिव ऑल्टरेशन में पहले आएगा ट्विनिंग। ट्विनिंग क्या है कि ये फॉर्मेशन ऑफ सुपरन्यूमररी टूथ हो जाता है। जब टूथ फॉर्म होता है ना, तो टूथ का जम होता है ऐसे, उसमें एक खड्डा हो जाता है ऐसे करके, ऐसे करके, फिर वो अलग हो जाएंगे, तो वो सुपरन्यूमररी टूथ बन जाएगा। वो ट्विनिंग के कारण होता है। नेक्स्ट आता है टेलन कस्प। ठीक है, ईगल का जो पाव होगा ना, ठीक है, उसको बोलते हैं टेलन। उसके नीचे टेलन जैसा होगा ऐसे शेप। ठीक है, ऐसा एक कस्प सिंगुलम एरिया में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? परमानेंट इंसाइजर होगा ना मैक्सिलरी या मैंडिबल, उसके सिंगुलम एरिया में, लिंगुअली। ठीक है, ऐसा एक अलग से टूथ का स्ट्रक्चर कभी कभार देखने को मिलता है। वो रोबिन्सन टैबी सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। वो कभी कभार टूथ के साथ इतना मर्ज हो गया होगा तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, और अगर नहीं होगा तो उसको आपको किसके थोड़ा स्मूथनिंग, पॉलिशिंग, ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी नॉर्मल इनेबल होता है, डेंटिन होता है, पल्प जैसा टिश्यू भी होगा। खाली उसका अलग से ये चीज है कि उसका शेप ईगल के टैलेंट जैसा है। ठीक है। अब कभी कभार वो क्या दिक्कत करता है, तो ऑक्लूजन में दिक्कत आता है। दांत के अगर ऑक्लूजन में दिक्कत आई तो हमको वो सुधारना होगा। मैंने बोला फिनिशिंग और पॉलिशिंग करना पड़ेगा। और वहां पे अब आप ठीक से ब्रश नहीं कर पाओगे, फूड लॉन्चमेंट भी होगा, तो चांसेस है कि कैरीज का रेट ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभार 5 मार्क में आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है। ठीक है। अब डेंस इवेजिनेटस। ठीक है, हमने आगे तो पढ़ लिया था डेंस इंडेंटे या डेंस इन्वेजिनेटस। इन मतलब अंदर, यहाँ पे बाहर है, इवेजिनेटस मतलब बाहर। वो क्या है, तो प्रीमोलर पर ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा दांत बाहर आ रहा है। ठीक है, ये प्रीमोलर है। सॉरी, एक ही रूट होता है लोअर में, अपर में दो, तो थोड़ा इलोंगेटेड पोर्शन हो जाएगा। तो लियोंग्स प्रीमोलर उसको बोलते हैं, ओक्लूजल ट्यूबरकुलेटेड प्रीमोलर और ओक्लूजल इनेमल पल। आपको लगेगा कि प्रीमोलर के ऊपर इनेमल का मस्त वाला एक थोड़ा लेयर जम गया है, तो वो बोलेंगे डेंस इवेजिनेटस। ठीक है। तो वो क्या है, उसका डेफिनेशन तो डेवलपमेंटल कंडीशन है। वो एक एसेसरी कस्प जैसा दिखेगा या इनेमल जैसा ग्लोब्यूल दिखेगा। कहाँ पे? ऑक्लूजल सरफेस ऊपर और बक्कल और लिंगुअल कस्प के बीच में। ठीक है। वो क्यों होता है? तो प्रोलिफरेशन हो जाता है और इवेजिनेशन, सेल काबू में नहीं रहते हैं, और इनर इनेमल एपिथेलियम होता है, वो अच्छी तरह से प्रोलिफरेट होके आगे बढ़ता है और थोड़ा इनेमल ज्यादा बना देता है। ठीक है, उसके कारण ये हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा कस्प जो होगा ना, वो कभी कभार इरप्शन में दिक्कत आएगा, टूथ को डिस्प्लेस कर देगा,
ऑक्लूजन में भी दिक्कत आएगा, वो सब प्रॉब्लम रहेगा। और ट्रीटमेंट, पेशेंट को अगर दिक्कत आती है तो उसको एसओएस ट्रीटमेंट देना है। एसओएस का मतलब पेशेंट को सिम्टम है तो ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इनेमल पर्ल। इनेमल पर्ल क्या है? इनेमल पर्ल का मतलब ये है कि थोड़ा इनेमल ग्रो हो जाएगा, इनेमल थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाएगा, या इनेमल का थोड़ा लेयर या ग्रुप इनेमल का ज्यादा हो जाएगा, उसको बोलते हैं इनेमलोमा और एक्टोपिक इनेमल, ठीक है। फिर आता है वो कितनी साइज है। तो यहाँ पे आपको देखो साइज खाली लिख कर 1 to 2 mm लिख देना है, ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, ठीक है। फिर कहाँ फॉर्म होता है, तो साइट, तो ये साइट लिखना है। रूट पर होता है या रूट के बाइफरकेशन पर होता है या ट्राइफरकेशन पर होता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये मोलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, इस जगह पर होगा इनेबल का पल, ठीक है। वो क्यों होता है, तो वो रेमनेंट्स ऑफ हार्टविक्स एपिथेलियल शीथ है, ठीक है। वो उससे उसकी एक्टिविटी से होता है, यही आपको रीजन लिखना है या इटियोलॉजी, ठीक है। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, तो वो क्या है कि वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे हम पेरियोडोंटली अपने टिश्यूज को साफ नहीं कर सकते पेशेंट, तो पेरियोडोंटल प्रॉब्लम्स कभी कभार करते हैं, ठीक है। तो अभी आया नेक्स्ट क्वेश्चन, मलबेरी मोलार। मलबेरी मोलार और हचिसंस इंट्राइड वो सिफिलिस में आता है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिसीज है जो ट्रिपोनिमा पेरिडियम बैक्टीरिया करता है, ठीक है। एड्स वायरस वाला डिसीज है, टीबी वाला बैक्टीरिया है, लेप्रेसी वाला बैक्टीरिया है, न्यूमोनिया वाला बैक्टीरिया है। ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि टीबी का कौन सा वायरस से होता है डिसीज, ठीक है। अब मलबेरी मोलर में क्या है, आपको हमने बता दिया है कि मलबेरी मोलर में पीछे का जो मोलर होगा वो मस्त वाला फूल जैसा वो दिखेगा, ठीक है। तो मलबेरी शेप का जैसे होगा, इसको बोलते हैं मलबेरी मोलर। सिफिलिस में होगा और ग्लोब्यूल्स ऑफ टूथ दिखेंगे, ये वाले सब ग्लोब्यूल्स है, ठीक है। फिर आता है ग्लोबोडोंशिया। तो ग्लोबोडोंशिया क्या है, तो पीछे का टूथ है ना वो बल्बस हो गया है, बड़ा वाला हो गया, मालफॉर्म, कोई शेप ही नहीं, ठीक है, कोई कस्प नहीं और ग्रूव नहीं, ठीक है। ऐसा ही दांत बन गया पीछे वाला, वरना कैसा होना चाहिए, ये कस्प होने चाहिए, उसका शेप होना चाहिए, ठीक है। ये सब ग्रूव्स होने चाहिए, कस्प होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, कस्प और ग्रूव का जो रिलेशन होता है, ऊपर का जो कस्प होता है और नीचे का ग्रूव होता है, ठीक है, वो सब एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरकस्पेशन होता है। लेकिन दांत ही ऐसा है तो क्या वो रिलेशन रखेगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ वो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है दोनों परमानेंट और डेसिडियस टूथ में। लास्ट में आता है हचिसंस इंसाइजर। सिफिलिस में पाया जाता है, आगे के दांत होंगे उसमें ऐसी नोच होगी, कभी कभार स्क्रू ड्राइवर शेप भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्करसन रोजेंथाल सिंड्रोम। वो क्या है, वो ट्रायड है जिसमें टंग अफेक्ट होती है, स्क्रोटम टंग होती है, फिशर टंग होती है, फेशियल पाल्सी होता है, ठीक है। चिलाइटिस ग्रेनुलोमाटस होता है, यानी कि लिप में प्रॉब्लम, लिप टंग और फेशियल पाल्सी का कॉम्बिनेशन, वो क्रॉन्स डिसीज और ओरोफेशियल ग्रेनुलोमेटोसिस उसका ही एक फीचर है, दोनों के साथ में भी होगा और कभी कभार उसका ही एक फीचर है। फिर होगा क्या क्या दिक्कत है, तो जेनेटिक्स में दिक्कत है। फिर क्या होगा, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा। हिस्टोलॉजी में क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और लिखना है कि एपिथेलियम में दिक्कत है, फिर कनेक्टिव टिश्यू में इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन है, सेल्स बड़े हो जाएंगे, ये सब आपको
लिखना है। कौन कौन से सेल दिखेंगे आपको? लैंगेंस टाइप जाइंट सेल दिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स भी दिखेंगे, लिम्फोसाइट भी देखने को मिलेगा, प्लाज्मा। तो आपको यहाँ पे सब सेल्स के नाम लिख देने हैं। ठीक है। अब 6 पैटर्न की टर्म आती है फिशर वाली, अलग अलग, तो वो सब दिखा है। सेंट्रल लॉन्जिट्यूडनल फिशरिंग, ये टर्म होगी, बीच में आएगा। फिर कभी कभार ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे अलग अलग टाइप की 6 टाइप की फिशरिंग दिया है। तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे 6 टाइप ड्रॉ कर लेने हैं। टेरेंस क्रस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया आगे। ठीक है। अभी आता है फेशियल हेमिएट्रोफी। ठीक है। फेशियल हेमिएट्रोफी में क्या है कि फेस जो होगा वो एक साइड से आधा बनेगा और एक साइड से ज्यादा बनेगा। ठीक है। ये साइड का आधा है, ये साइड का कंप्लीट है। ठीक है। वो क्या है कि हाफ फेस है ना, उसकी एट्रोफी हो गई है। ठीक है। एट्रोफी मतलब कोई भी चीज का कम हो जाना। ठीक है। हाफ ऑफ द फेस एट्रोफी हो जाएगी। उसमें क्या क्या होगा? उसमें फैट नहीं होगा और कभी कभार स्किन भी नहीं होगी और कार्टिलेज भी नहीं होगा। बोन और मसल, जो भी सॉफ्ट टिश्यूज है एक साइड का, वो कम हो जाएगा। उसका कारण क्या है? एट्रोफी के कारण। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या है? तो वो फर्स्ट एंड सेकंड, ये सब रेयर डिसऑर्डर है। फर्स्ट एंड सेकंड में होगा, फीमेल्स में ज्यादा होगा, फिर लेफ्ट साइड पर ज्यादा होगा। फिर क्या है कि मार्क्ड बाय वाइट लाइन फरो। ठीक है। कभी कभार फेस के ऊपर एक थोड़ी वाइट लाइन जैसी दिखेगी, फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे चालू हो गया है ये प्रॉब्लम। ठीक है। लाइन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर साइन ऐसे है कि पेनलेस क्लेफ्ट। ठीक है। मुंह के अंदर थोड़ा खड्डा जैसा दिखेगा आपको, वो पेनलेस होगा, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होगा। फिर कभी कभार वो लाइन चली जाएगी और स्कार भी रह जाएगा। ठीक है। वो स्कार जो रहेगा उसको बोलेंगे कॉव डी सैब्रे। ठीक है। और कभी कभार ब्लूइश हु भी दिखेगा। ये मतलब कलर, जो फर्स्ट साइड में जो कलर दिख रहे हैं ना, वो। ठीक है। अब ओरल मैनिफेस्टेशन तो आपको पता ही है, एक साइड का मुंह कम है तो खाने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, फिर दिखने में दिक्कत, वो सब ऐसा प्रॉब्लम रहेगा। कोई पेशेंट सर्जरी करवाएगा, कोई पेशेंट सर्जरी नहीं करवाएगा। ठीक है। उसके साथ कौन कौन से सिंड्रोम जुड़े हैं? तो गोल्डन हार्ट सिंड्रोम जुड़ा है, जो कि नॉन प्रोग्रेसिव है और कंजेनिटल है। मैंडिबुलर फेशियल डायसोस्टोसिस है, उसमें क्लेफ्ट पैलेट भी आ सकता है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट तो क्या करना है? तो आपको सर्जरी से करेक्ट करना है, और जो माल ओक्लूजन होगा उसको आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट से करेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे लिखना है SOS। उसका मतलब पेशेंट को अगर सिम्टम है, पेशेंट की अगर एज है, पेशेंट की अगर एस्थेटिक कंसिडरेशन है, तो हमको ये ट्रीटमेंट करनी है। फिर आता है मेसियोडेंस। ठीक है। मेसियोडेंस क्या है? ऊपर के जो दो दांत है ना, उसके बीच में एक ऐसा दांत देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों में देखा होगा। ठीक है। ये इंसाइजर है, ये इंसाइजर है, बीच में ऐसा दांत दिखेगा, वो सुपरनुमेररी टीथ है। ठीक है। तो सुपरनुमेररी टूथ का जो क्वेश्चन हमने किया ना, वही आपको कर लेना है। कहाँ पे लोकेशन होगा? तो बीच में होगा, दो दांत के बीच में। फिर शेप और साइज के हिसाब से उसके थोड़े क्लासिफिकेशन है, यूमॉर्फिक और डिसमॉर्फिक। ठीक है। यूमॉर्फिक में क्या होगा कि वो नॉर्मल साइज होगी, और डिसमॉर्फिक में क्या होगा, वो थोड़ा कम जैसा दिखेगा, अलग अलग साइज का। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्म है? तो कॉनिकल फॉर्म सबसे ज्यादा है। तो आपको ये थोड़ी वीडियो देखकर थोड़ी नोट्स बना देनी है, या मैं आपको ये पीडीएफ भेजा हूँ, तो ये पीडीएफ में भी आपको करके छोटी सी नोट्स बना देनी है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। अब मेसोडेंस कैसे दिखेगा? तो वो अलग से फाइंडिंग देखेगा। गार्डनर सिंड्रोम में भी आता है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट में भी आएगा, और क्लिडोक्रेनियल डिसोसिएशन। तो इसका पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हो, एसोसिएटेड
विथ। कभी कभार वो एक दांत भी होगा और कभी कभार पैर भी होगा, कभी कभार सीधा होगा, कभी कभार उल्टा होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कॉन शेप्ड क्राउन होगा, ये कॉन शेप्ड क्राउन और रूट थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, ऐसा दांत होगा। अब मेसोडेंस से क्या क्या दिक्कत आती है, तो इट्स फीचर्स या उसके इफेक्ट्स, इरप्शन डिले होगा, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है टीथ का, या रिजॉर्प्शन हो सकता है आजू बाजू के दांत का। कभी कभार ऑक्लूजन में भी दिक्कत आएगा, वो सब भी आपको लिखना है। ठीक है, और जब ये ज्यादा प्रॉब्लम करता है तो ये आपको इमीडिएटली निकालना पड़ेगा। कौन कौन से प्रॉब्लम में, इरप्शन डिले करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, आजू आजू बाजू दांत को इंटरफेरेंस करता है, कोई सिस्ट बन जाती है, या तुरंत इरप्शन हो जाता है सुपर न्यूमेररी टीथ का। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि एसओएस आपको ट्रीटमेंट करना है, बहुत दिक्कत है तो आपको निकालना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूरे लिस्ट बनाना है जो भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से उसका, और टोरोडोंटिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो ये लिस्ट तो आपको रटना ही पड़ेगा, ये जो भी दिया है ना, वो नंबर में क्या क्या आएगा, साइज में क्या क्या आएगा, शेप में क्या क्या आएगा, वो सब। ठीक है, और टोरोडोंटिज्म हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही लिया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको क्या करना है, ये दो पीडीएफ जो मैं आपको भेजा हूँ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का, उसमें से नोट्स बना दीजिए। नोट्स में क्या है, नो पैराग्राफ, बोलते हैं ना सीधी बात, नो बकवास, ऐसे डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखना है। साइट लिखिए, कहीं भी शेप लिखिए, क्लिनिकल फीचर लिखिए, एसोसिएटेड विद दिख रहे, सिंड्रोम लिखिए, ऐसे सब पॉइंट्स में आपको लिखना है। फिर ये नोट्स बन जाएगी ना एक दो दिन में, फिर हम अगला टॉपिक चालू करेंगे, क्योंकि आगे भी थोड़ा टॉपिक्स ऐसे है कि ये बार बार हमको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे नोट्स बना देंगे ठीक से, तब जाके हमारा रिवीजन भी ठीक हो जाएगा, और आगे फाइनल ईयर में ओरल मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है वो ये हाफ वाला ओरल पैथोलॉजी है। फिर आगे रेडियोलॉजी भी करना है, आगे हमको थोड़े फीचर्स क्या क्या लिखना है, ट्रीटमेंट भी लिखना होगा उसमें, तो तब जाके ये हमको फिर रिवीजन ना करना पड़े, ऐसी नोट्स बनाना पड़ेगा। ये जो चैनल है मेडिकल डेंटल एकेडमी की, उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल है, लाइव में भी दिखेगा और वीडियोस में भी दिखेगा, तो आप ये वीडियोस में जाकर नोट्स भी बना सकते हो। अगर आपको रिवीजन करना है तो इसमें रिवीजन भी कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, कोई डाउट्स हो तो हमको बताइए, आप कमेंट करके भी बता सकते हो, व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो। अब थोड़ा आउटरो इंट्रोडक्शन थोड़ा हमारा दे देते हैं, फिर बाय बाय बोलने का टाइम आ जाएगा। गाइस, हमारी एकेडमी की वेबसाइट है, आज शायद एप्लीकेशन बन जाएगा ऐसा डेवलपर बोल रहे थे, बनेगा नहीं ऐसा तो हम एक महीने से बोल रहे हैं। एप्लीकेशन बनने के बाद तुरंत ही सब वीडियोस, सब स्टडी मटेरियल हम उसमें रख देंगे। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियोस कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। Also, if you have not pressed the bell icon, please press the bell icon for upcoming notifications. Also, please share our word to all your colleagues. Those who are finding difficulty in passing first to final year BDS, passing NEET MBS at the first attempt, or any exams of competitive level at dental pattern, we will help you. We will surely provide you maximum support. We have provided free test series of NEET MDS, Dental GPSC, all state public service commission exam in our website. You can register in the website and have a look at all the test series. If you are planning to go for paid one, please contact us. We will help you. So it's time to tell you bye bye. Have a nice time. Good night.